Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Virgo Ascendant and how the month of March 23 is going to pan out for you. So we will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mercury will continue to pass through the 6th house till 15th of March. So all of you should take care of your health and avoid getting into any arguments or conflicts in the first half of the March. After this, Mercury is going to move into the 7th house for the remaining part of the month. So from 16th of March to 31st of March, Mercury is going to transition through the 7th house and it is going to bring a lot of laurels for you at the workplace. It is an opportunity for you to excel and get good results in your profession. And for all those people who are single, an opportunity to get hitched in the second half of March. So this is going to be a mixed month owing to the ascendant's transition from the 6th and 7th houses. Let us also look at other planets. Venus will pass through the 6th house till 11th of March, which will continue to benefit those who are associated with money financing businesses or any work that is related to accounting or banking industries. And after this, it will move to the 7th house of businesses and partnership from 12th of March to 5th of April. Now, Venus is the natural significator of love and affairs, and its transit in the 7th house, along with the placement of Mercury here in the second half of March, again indicates opportunity to get hitched. And people who are willing to start a business in partnership, for them also the second half of the month 15th March to 31st of March is the best time to do so. In the entire year of 2023, you will not get such a good alignment again during this year. Venus is also the lord of the self-earned wealth, and the best time for you this month financially will be on 21st and 22nd of March. Saturn is the lord of fifth house, that indicates education, speculation, and the things that are related to creativity. And it is going to continue to transit through the sixth house. So if you are a student, then the best time for you in month of March will be 5th and 6th of March. And if you are interested in speculation and playing the investment game, then the middle of the month will be very fruitful for you, especially the time frame from 16th to 18th of March will be good for investing in the stock market. Saturn also indicates service. Saturn is the natural significator of all those people who are in jobs or in service. So they will also see a good time in March, especially on 9th and 10th of March. These 2 days will be very fruitful for excelling on the job front. Mars is going to remain stationed in the ninth house till 12th of March, and after this it is going to shift to 10th house where it will stay till 4th of May. Now Mars gets directional strength in the 10th house and is considered extremely good. So you will be able to bring a lot of energy to your workplace in the second half of March. Now I always talk about the days where you have to remain cautious, and there are certain days in March where you need to avoid taking any key decisions. So these dates for you in the month of March are 7th and 8th of March, 11th and 12th of March, 18th and 19th of March, and 28th and 29th of March. Avoid getting into arguments during these days and also shun any key decision that may have an impact on you in the future, and you will see yourself excelling at the workplace in the second half of the month. So that's the summary for you for this month. I hope you liked this video. Please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कन्या लग्न वाले लोगों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, ये महीना एक हम मिक्स्ड महीना इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पहले 15 दिन 15 मार्च तक का समय आपका लग्नेश छठवें भाव से भ्रमण कर रहा होगा। छठवें भाव से आप रोगों को देखते हैं, अपने शत्रुओं को देखते हैं और जो भी आपने कर्जा लिया होता है उसको देखते हैं। तो छठवें भाव से लग्नेश का जाना यानी आपको पहले 15 दिन अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है और किसी भी तरह के वाद विवाद और शत्रुता से आपको बचना है। कन्या लग्न वालों का भी जैसे मिथुन लग्न होता है, उसी तरह से जो शत्रु होते हैं वो इनके ऊपर काफी चोट पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं, इसीलिए हर तरह के वाद विवाद से इन्हें वैसे भी दूर रहना चाहिए और आपको पहले 15 दिन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी है। इसके बाद 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो लग्नेश हैं वो सप्तम भाव में चले जाएंगे
और जो द्वितीय भाव है सेकंड हाफ मार्च का, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको आपके कार्यस्थल पे आगे बढ़ने में ये समय बहुत मददगार साबित होगा। और जितने भी लोग शादीशुदा नहीं हैं उनको भी 15 से 31 मार्च के बीच में गोचर में ये इस तरह का ट्रांजिट हरी झंडी दिखा रहा है शादी करने के लिहाज से। तो अगर महादशा अंतरदशा फेवरेबल है तो इन लोगों की शादी भी इस 16 दिनों में हो सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए मिक्स्ड महीना ही रहेगा, क्योंकि लग्नेश पहले 15 दिन छठवें भाव में ट्रिकी पोजीशन रहेगी, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे द्वितीय भाग में। अभी एक नज़र बाकी ग्रहों पर भी डाल लेते हैं। देखिए, शुक्र 11 मार्च तक छठवें भाव से भ्रमण करते रहेंगे, और जितने भी लोग फाइनेंस से जुड़े हुए बिजनेसेस में हैं, यानी बैंक्स में हैं या भी एनबीएफसीज हो गए या जो भी इंस्टीट्यूशंस हो गए जो दूसरों को कर्जा देने का काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, उन सब के लिए ये समय अच्छा बीतेगा। इसके बाद शुक्र सातवें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर ये 12 मार्च से 5 अप्रैल तक बैठे रहेंगे। तो देखिए, शुक्र एक अट्रैक्शन का कारक ग्रह है, नेचुरल सिग्निफिकेटर जिसे हम कहते हैं वो। लव अफेयर्स भी दिखाता है, ये आपके पार्टनर को भी दिखाता है, शादीशुदा जीवन को भी दिखाता है। तो यहाँ पर शुक्र का आगमन होगा और इसके बाद लग्नेश बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी तरीके से भी ये कोरिलेट होता है कि व्यक्ति की शादी होने के या किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खास करके अगर महादशा भी शुक्र की चल रही हो तब तो फिर ये होकर ही रहता है। तो यहाँ पे 15 से 31 मार्च का समय में व्यक्ति एक पार्टनरशिप का भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी बैठे रहेंगे, शुक्र भी उच्च के हैं और लग्नेश भी आ जाएंगे। तो सब तरफ से व्यक्ति को अगर काफी समय से बिजनेस वो करना चाहता है तो 15 से 31 मार्च का समय पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए 2023 का सबसे बेस्ट समय है। आपको इस तरह का अलाइनमेंट पूरे साल में बाद में नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं वो इस समय में पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र द्वितीय भाव के भी स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव से आप स्वयं का कमाया हुआ धन देखते हैं और इन जनरल पैसा देखते हैं। तो आपके लिए जो सबसे अच्छे दिन है मार्च में, वो 21 और 22 मार्च है, जब आप अपने पास धन आता हुआ देखेंगे। एक नज़र शनि पे भी डालते हैं। शनि पंचम और छठवें भाव के मालिक बनते हैं। पंचम भाव से आप एजुकेशन देखते हैं, शेयर बाजार या सट्टा देखते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ देखते हैं जिसमें क्रिएटिविटी का समागम होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो 5 और 6 मार्च आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं पढ़ाई की दृष्टि से। और अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो मिडिल ऑफ द मंथ यानी 16 से 18 मार्च का समय आपके लिए सबसे अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से शेयर मार्केट में। और इस समय आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। शनि चूंकि सर्विस को भी दिखाते हैं, जितने भी रोजगार या जॉब्स में जो भी लोग हैं उनके लिए मार्च का महीने में 9 और 10 मार्च सबसे अच्छा समय है। और जैसा मैंने पहले बताया था, 15 से 31 मार्च वाला जो समय है वो तो सबके लिए अच्छा है प्रोफेशनली, लेकिन अगर आपको जॉब स्पेसिफिक दिनों की बात करें तो 9 और 10 मार्च का समय बहुत अच्छा है। मंगल नवे भाव में बैठे रहेंगे 12 मार्च तक और इसके बाद ये दशम भाव में मूव कर जाएंगे, जहां पर ये 4 मई तक रहेंगे। मंगल को दशम भाव में दिग्बली माना गया है और जितने भी भाव की पोजीशंस हैं उसमें मंगल की 10वें भाव में पोजीशन सबसे स्ट्रांग कहलाती है। हालांकि यहाँ पर ये उसके दुश्मन बुध की राशि है, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पर अपनी ऊर्जा लेकर आएगा। और जब मंगल यहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा 13 मार्च से, उसके बाद आप अपने कार्यस्थल पे एक नई ऊर्जा लेके आएंगे और लोग भी आपके इस एनर्जी को वर्क प्लेस पे नोटिस करेंगे। अब मैं हर महीने में कुछ कॉशस रहने वाले दिन बताता हूँ। ये बेसिकली वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है। इन समय में व्यक्ति को कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए और ऐसा कोई भी निर्णय लेना टालना चाहिए जिसका कि उस पे कोई दूरगामी प्रभाव पड़े। तो आपके लिए जिन दिनों में आपको सावधान रहना है वो दिन है 7 और 8 मार्च, 11 और 12 मार्च, 18 और 19 मार्च और 28 और 29 मार्च। इन 8 दिनों में आप कोई भी की डिसीजन लेना टालिए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये आपके लिए मिला जुला महीना रहेगा। और जो द्वितीय भाव है मार्च का 16 से 31 मार्च तक का, इसमें आपको प्रोफेशनल अपने डोमेन में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिखेंगी। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।